Right. So, goal setting in current turbulent phase. Okay. Now I have put in efforts to choose my words. Okay. We can write it as in current testing times, right? We can write many things in current pandemic situation, but I choose to write in current turbulent phase. And there is a reason for that, because when you say phase, it is in the sense that it will pass. Okay. फेजेस का मतलब ही ये है कि वो बाइफर्केटेड होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, चाहे वो खराब हो चाहे वो अच्छा फेज हो, राइट? So with that optimism that current testing times will pass, right? We start with the session and I will again come up with one trivia, but now this obviously is relevant to your core agenda for today. Okay. So both of these words are credentials or qualities that you must possess at this point in time. Okay. So anyone would like to fill in the letters by unmuting yourself? देखो, एक क्लू मैं ऑलरेडी दे रहा हूं कि इसमें सारे ही वॉवेल्स आ चुके हैं, मतलब जितने भी ब्लैंक लेटर्स हैं वहां पे कॉन्सोनेंट आएगा. यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवेल्स हैं वो आ चुके हैं, तो बाकी के ब्लैंक्स में ए ई आई ओ यू तो नहीं है, राइट? वुड एनीवन लाइक टू गेस? सही गलत आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, प्लीज टेल मी. Thank you for the opportunity, sir. I think the word is vision. That's right. Vision is right. Try the next one. लोग सोचेंगे सर ये क्या है, मतलब आप कुछ वैल्यू ऐड करने आए हो या ट्रिविया थ्रो करने आए हो. But very soon you are going to connect all the dots. दूसरे में भी सेम क्लू है, वॉवेल्स आ चुके हैं. ठीक है. So in the interest of time I'll just go ahead, right, and tell you vision and awareness. ठीक है. होता क्या है कि आज से 10 years के बाद मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, उसका विजन काफी लोगों को होता है, राइट? मेजर portion of the students attending this session do have a vision, but at times we do not have awareness, right? I have seen a few segments, some people out there जो बहुत रिसर्च करते हैं, अवेयरनेस हर चीज की ले लेते हैं, बट देन खुद आगे क्या करना चाह रहे हैं वो विजन नहीं होता है. तो either of this will not help. You will need both. Okay. And accordingly, while setting a goal, okay, there are quite a few factors that play a role. मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये चीजें आपको पता है, बट एक बर्ड्स आई व्यू से समझना जरूरी है, तब जाके आप सिस्टमैटिक वे में एक गोल सेट कर पाएंगे. And we are going through times where markets are ruthless. I need not prove this, right? Be it job market, be it the economy at large globally or within India. ठीक है. तो of course आपके parents का काफी influence रहता है childhood से. You have your friend circle, your peer group who are kind of pursuing something or the other, right? You have your own individual aspirations as well. Obviously, जब चाइल्डहुड में मैं था तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, जब मैं 11th में आया तो मुझे क्रिकेटर बनना था, राइट? एंड देन ऑब्वियसली थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस व्हेन आई एक्चुअली डिस्कवर्ड द कॉलिंग पार्ट, राइट? कौन सी चीज मुझे बुला रही है एंड किस चीज के लिए मैं टेलर मेड हूँ. ठीक है. And you have some counselors or teachers at your school or university, who would help you out, right? And at the same time, then there is environment pressure. And obviously, ये explain करने की जरूरत नहीं है. When I say environment pressure, I mean the external forces, like pandemic or like depression or like boom. ठीक है, ये सारी चीजें. So I hope it makes sense. And accordingly, जब आपको एक खुद का गोल सेट करना है, राइट, तो वो एक डिस्टेंस वाली चीज है कि अल्टीमेटली मेरा गोल ये है, बट वो अचीव कब होगा? when I keep on hitting my immediate next target. If I only look at my goal, तो यहाँ से बैठे हुए तो वो ओवर एम्बिशियस ही लगेगा, बिकॉज उसके लिए क्या एफर्ट लगाना है उसकी शुरुआत नहीं हुई है, राइट? एंड बिकॉज उसमें काफी सारे हर्डल्स और माइलस्टोन्स
अवेलेबल है, इंक्लूडेड है, तो मुझे वो टफ लगेगा, बट इट विल ओनली सीम फीजिबल व्हेन यू कीप फोकसिंग ऑन योर इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर योरसेल्फ। आप खुद से पूछें आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, राइट। For example, when I am, doing my graduation, I am told most of you are first and second year students. There could be final year students as well, right? So at this point, whether you like working alone or in a group, okay? Because इंडस्ट्री में जो जॉब्स हैं, जो टास्क आपको दिए जाते हैं, वो जब आपकी पर्सनालिटी से अलाइंड होंगे तो लॉन्ग रन में आप सक्सेस अटेंड कर पाएंगे विदाउट अ डाउट, राइट। सबकी खुद खुद की डेफिनेशन होती है सक्सेस की, बट देन ट्रस्ट में द डेफिनेशन इज वेरी मच सब्जेक्टिव। सक्सेस इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। किसी के लिए हैप्पी हेल्दी रहना एक सक्सेस है, किसी के लिए सीईओ बनना एक सक्सेस है, राइट। एंड किसी के लिए सिर्फ गेटिंग मैरिड इज अ सक्सेस, समझ रहे हो। तो यू नीड टू हैव योर ओन इंडिविजुअल इवैल्यूएशन, ठीक है। आप प्रेशर हैंडल कर पाते नहीं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल प्रेशर, तो आपका इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, वैसा नहीं है, राइट। जैसे मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, आई लाइक टॉकिंग टू न्यू पीपल, आई जेल वेल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट हैं वो केपेबल नहीं है, राइट। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, इंट्रोवर्ट जल्दी से कर देगा, राइट। एंड आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या हर एक चीज के लिए आपको बार बार पुश करना पड़ता है, राइट। आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, कोई भी डिस्कशन जब हो रहा होता है, करंट अफेयर्स रिलेटेड हो या कोई इश्यू रिलेटेड हो, तो उसमें आप क्या इनपुट दे पा रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। एट अ टाइम तीन चार चीजें मैनेज कर पाते हो या फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, एट अ टाइम एक ही चीज कर पाते हो, इन सब चीजों पे जब आप खुद को आंसर्स देंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू नैरो डाउन, वो फनल नैरो होती जाएगी एंड यू विल एंड अप विद समथिंग दैट इज बेस्ट सूटेबल फॉर यू, ठीक है। एंड ये होता है कि अगर आप कोई चीज में डिसएग्री कर रहे हैं, राइट, तो एक बोल्ड स्टेप लेके आप उसमें आर्ग्यू करते हो, या फिर अगर कोई आपसे पावरफुल है तो आप मानते हो नहीं इसमें आर्ग्यू करना नहीं चाहिए, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका कोई सही या गलत आंसर है ही नहीं, राइट। इट्स जस्ट अबाउट योर व्यू पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, ठीक है। Accordingly, if your talks or if your thoughts are backed by logic, then you can, very हाँ, ये होता है कि आप पेरेंट्स के सामने, अपने प्रोफेसर्स के सामने जब आर्ग्यू करें, तो देयर इज अ पॉलिश्ड वे टू डू दैट। Sir, with due respect, I beg to say that this. Sir, I kind of belong to a different school of thought, but then I strongly believe that this. समझ रहे हो? So this is how you need to make yourself industry ready. फिर आप बीकॉम में हो, बीसीए में हो, इंजीनियरिंग में हो, नहीं फर्क पड़ता। At the onset of this session, let me tell you, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, बट उसका समरी क्या निकलेगा पता है? काफी बार टेक्निकल नॉलेज अगर 19-20 हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे योर थॉट्स कॉन्फिडेंटली, राइट, आप आंख में आंख डाल के अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, तो देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। इंग्लिश फ्लुएंसी की बात नहीं हो रही है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, बट सिर्फ उसी के बेस पे जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा वैसा नहीं है, ठीक है। So yes, going ahead, let me put this an in-depth chart in front of you कि जब हम अभी बीकॉम कर रहे हैं, राइट, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, there is an honors program available out there in MSU. There are people into Bachelor of Business Administration, एक regular BCom program से आप काफी लोग हैं, ठीक है। तो broadly speaking, what are the next steps that we generally take, right?
जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीकॉम में, फिलहाल मैं दूसरी इंजीनियरिंग या प्योर साइंस की बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई वांट टू स्टे रिलेवेंट टू द ऑडियंस दैट इज राइट नाउ इन द सेशन. ओके, in between, of course, needless to mention that please unmute yourself and interrupt me, right? उसके बिना, as I said, value addition नहीं होगा. So I don't want to just speak and leave. I want to add value and help you with your queries and concerns and well. And तब जाके कुछ decision making हो पाएगी, right? वरना तो बस 1.5 घंटा आप बैठे रहोगे और मैं बोल दूंगा खत्म. ठीक है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मास्टर्स इन इंडिया, यस, काफी लोग आप में से स्ट्रीट स्मार्ट हैं, इस पे इवैल्यूएशन कर चुके हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप किस चीज के लिए अच्छे हो, राइट? या फिर आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, आपके वीक एरियाज क्या है, राइट? स्वॉट एनालिसिस व्हाट वी कॉल. If some of you have not learned already, you will learn that in second, third year, right? But मेरा अप्रोक्सीमेशन है कि फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक आ जाता है, राइट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो इसका मैप वे में एनालिसिस होता है कॉर्पोरेट्स के अंदर, एंड ये वाइडली यूज्ड थियरी है. ठीक है, इससे कंपनीज को एक क्लियर विजन आ जाता है कि आगे कैसे बढ़ना है. ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नली हो, राइट? मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं, राइट? मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसीज, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल है, मतलब आपका वर्कफोर्स कैसा है, आपकी कंपनी कहाँ लैग कर रही है, ये सारी चीजें. ओके, एनीवे, सो मास्टर्स इन इंडिया, मास्टर्स अब्रॉड, राइट? प्रोफेशनल कोर्सेज, कैंपस रिक्रूटमेंट्स, देयर आर पीपल, राइट, जो अभी से सोचते हैं कि यार ये बीकॉम हो जाए वही बहुत है. तो ठीक है, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, राइट? जो रैट रेस है या जो सोसाइटी जिसको एक टैग देती है, वही फेयर और जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, अगर आप सोचते हो कि बीकॉम के बाद ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, आई वांट टू गेट इनटू समथिंग और द अदर, व्हाई नॉट, राइट? मास्टर्स ही सब कुछ नहीं होता है, right? Then of course you have public sector jobs, right? You have an option of joining your own family business or getting into a startup if you have a great idea. Why not? मतलब आप में से कुछ लोग might create history. ठीक है, हाँ, नॉर्मली इन 6 के अलावा होता नहीं है, राइट? हम ब्रॉडली बाइफरगेट कर रहे हैं, बिकॉज इससे अलग कोई ऑप्शन होगा भी तो कहीं ना कहीं 6 के अंडर फॉल होगा, राइट? सो बीकॉम के बाद एमकॉम एक लेमन के तौर पे ऑप्शन तो है. इफ देयर आर स्टूडेंट्स जिनको अभी जो सेशन हो रहा है उस तरीके के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं अटेंड करने के लिए, या फिर वो जरा भी रेसिप्रोकेट नहीं करते, जो बोला गया है वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो वो फिर दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे ही नहीं, राइट? बिकॉज देयर इज नो वन टू गाइड देम, देयर इज नो वन टू गिव देम अवेयरनेस. ओके, बट वो पोएम जैसा होना जरूरी नहीं है, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए नहीं, राइट? अगर जब हम एमबीए की बात कर रहे हैं तो आप कोई भी बैचलर डिग्री के बात कर सकते हैं. ठीक है, द ब्यूटी इज दैट आगे जाके कोई भी कोर्सेज वैसे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है आपके लिए, अनलेस एंड अनटिल कि आप बोलो नहीं मुझे एमटेक करना है, इंजीनियरिंग वालों का मास्टर्स करना है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा. ठीक है, एंड वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू. मतलब अगर इंजीनियरिंग के बाद किसी को एमबीए करना है तो वो कर सकते हैं, एंड दैट इज वेयर कॉमर्स पीपल फेस द कंपटीशन. ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि एमबीए, एमएचआरएम, ये सारे कोर्सेज जो हैं या गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो ऑल 3 स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, विच मीन्स कि इनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो परफॉर्म करेगा उसको आगे चांस मिलेगा, प्लेन एंड सिंपल. ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप सोशल वर्क या ह्यूमन रिसोर्स को एज ए स्पेशलाइजेशन टेकअप करके मास्टर्स की सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली एमएचआरएम एंड एमएसडब्ल्यू आर गुड प्रोग्राम्स. ओके, इंडिया वाइड there are good colleges like Tata Institute of Social Science, you have Delhi University, you have Azim Premji University in Bangalore, you have Nirmala Niketan in Mumbai, and you have MSU. ठीक है, सोशल वर्क फैकल्टी ऑल इंडिया रैंक 4 है, आपको अगर ना पता हो तो. ठीक है, एंड एमबीए के लिए भी वी नो आईआईएम्स आर द बेस्ट, बट वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ा वाइड है. कहने का मतलब आईआईएम्स पे दुनिया खत्म नहीं हो रही,
Previously what used to happen is that more of the engineering crowd used to get into the top colleges for the primary reason being कि वो entrance test में better perform कर पा रहे थे. But now the good news is that IIMs too have started emphasizing on the diversity factor. कहने का मतलब कि ह्यूमैनिटी, प्योर साइंस, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का भी इक्वल चांस बने, वैसे क्रेडेंशियल्स और वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने डिजाइन कर दी. अब फॉर एग्जांपल आप लोग परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क तो समझते हैं, ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ. इफ नॉट देन यू कैन स्टॉप मी इन बिटवीन. ठीक है, तो नॉर्मली एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स परसेंटाइल में आते हैं. तो अगर कोई इंजीनियर 99 परसेंटाइल स्कोर करता है तो उसको आईआईएम्स या जेवियर्स या एफएमएस जैसे कॉलेज के लिए सेकंड राउंड कॉल है, यहाँ पे फिर उसका इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, सॉफ्ट स्किल बेस्ड राउंड्स, राइट. बट देन यही चीज कॉमर्स वालों के लिए 94.5 पे ड्रॉप हो जाती है. तो एब्सोल्यूट स्कोर के टर्म्स में जब आप बात करोगे तो पूरा का पूरा 20 से 25 मार्क का फर्क आ जाता है. ठीक है, and obviously if you have flair over English language articulation में आप अच्छे हैं, you can look at mass communication and journalism anyway is multilingual, right? mass comm and journalism same नहीं है by the way, काफी लोग इसको interchangeably use कर लेते हैं, but then journalism is different, मतलब print media से लेके television multilingual होता है, जबकि mass comm is more about addressing a bulk, मतलब जैसे कंपनीज में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस मैनेजर होते हैं तो वो मास मीडिया या मास कॉम की पढ़ाई करके सिलेक्ट होते हैं. या फॉर एग्जांपल आपको अपनी कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करना है तो वो लोग इस सेगमेंट से आते हैं, राइट. एंड इफ देयर आर पीपल आउट देयर हु थिंक दैट आई एम गुड विद टैक्सेशन, आई एम गुड विद थियरी सब्जेक्ट्स, तो व्हाई नॉट एलएलबी, राइट. इवन दैट इज अ ग्रेट प्रोग्राम. जैसे हम एमबीए में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर वगैरह की बात करते हैं, वैसे ही लॉ के अंदर भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं. ऑब्वियसली क्रिमिनल लॉ सभी को पता है बिकॉज हमने बॉलीवुड मूवी में एक्सटेंसिवली वही देखा है. बट देन यू हैव सिविल लॉ, लेबर लॉ, साइबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ. ठीक है, and accordingly you would get opportunities from campus as well, right? Good consulting firms like Deloitte, KPMG, there are public sector units जहाँ पे separate legal officer होते हैं, जैसे HR officer होता है, जैसे finance officer होता है, वैसे ही legal officer होता है, right? And if you are from commerce, you cannot take up master of arts, वैसा भी नहीं है, right? जो मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की बात कर रहा था वो मास्टर ऑफ आर्ट्स देते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, सोशल वर्क में. ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस फील्ड में खुद को देखना चाहते हो, नॉट जस्ट द कोर्स. मतलब एट टाइम्स मैंने काफी स्टूडेंट्स में एक नेगेटिविटी भी देखी है कि एमबीए इज वेरी ओवररेटेड, राइट, या मास्टर्स करने से अच्छा क्यों ना मैं जॉब शुरू करूं, 2 साल में एमबीए खत्म करूंगा, तब तक अभी से 2 साल काम करूंगा तो ग्रोथ मिल जाएगी. तो ये सारे एप्रीहेंशंस हैं, ये थॉट प्रोसेस को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, राइट, बट आई विल गिव यू सम ट्रिगर पॉइंट्स. ठीक है, जिससे आपको ये दोनों सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस इवैल्यूएट करने में आसानी होगी. देयर इज समथिंग कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, और उसी को फ्लॉन्ट करने के सेंस में आप सोचते हैं कि मास्टर्स करने से कोई फायदा नहीं होगा, राइट. कि जब मैं 2 साल एमबीए कर रहा हूँ तो वो 2 इयर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरी जॉब के, कि उन 2 इयर्स में मैं जॉब कर रहा होता तो हाउ मच वुड आई हैव अर्नड. ठीक है, बट देन वो 2 इयर्स के बाद एमबीए से आपका करियर टेक ऑफ होता है, एक किक स्टार्ट हो जाता है, राइट. बट देन एक बैचलर डिग्री के बाद डायरेक्ट जब आप जॉब लेते हैं तो वो एक प्रॉपर पेस पे चलती है, स्लोली ग्रेजुअली आपकी ग्रोथ होती है, राइट. तो इंडिविजुअल प्रायोरिटीज पे है कहने का मतलब. चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, दीज ऑल आर ग्रेट कोर्सेज, मतलब डाउट ही नहीं है कि इसका पासिंग रेशियो भी काफी कम है, राइट. एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में इसकी जरूरत भी है. But you need to understand कि these are not full-time master's degree. ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी यस रिसेंटली यूजीसी ने अलाउ करा है, ये 1.5 महीने पहले का अपडेट है. इफ सम ऑफ यू डोंट नो दिस,
चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसको एक मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट कंसीडर करना शुरू किया है, बट द रेस्ट आर स्टिल नॉट फुल टाइम मास्टर्स डिग्री। एंड देयर आर पीपल जो लोग आईपीसीसी वगैरह में ऑलरेडी होंगे अगर सीए परस्यू कर रहे हैं तो, राइट। सो ऑब्वियसली उस सेंस में आपने अपनी डायरेक्शन ले ली है, फोकस ऑन दैट। लॉन्ग रन में उसके बाद मास्टर्स की भी सोचो तो यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। इफ नॉट देन सीए से आपको एक डिसेंट जॉब मिल ही जाएगा, एंड खुद की प्रैक्टिस करने का प्लानिंग हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो एमबीए जो ओवररेटेड है, राइट, जो अगर लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है पता है? एमबीए आज की डेट में 27 स्पेशलाइजेशंस में हो रहा है। मतलब मैंने एक ऐसा स्पेशलाइजेशन किया, बट देन उस कोर्स का नाम एमबीए है। स्पेशलाइजेशन काफी यूनिक है, काफी नीश है, ठीक है, बट आई टर्म इट एज एमबीए। तो हम इतनी जगह एमबीए एमबीए सुन रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि कोई पॉइंट नहीं है, हर कोई कर रहा है, बट हर कोई टॉप बी स्कूल से नहीं कर रहा है, राइट। When I'm giving you some facts and figures, you can yourself note that down and validate it for yourself. UGC का एक फिगर निकला हुआ है कि आउट ऑफ द टोटल एमबीए ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जितने भी 20 स्कूल से लोग एमबीए खत्म कर रहे हैं, उसमें से ओनली 7% आर एम्प्लॉयबल, एंड दिस इज सैड। मतलब इंडिया जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन में हमारा नाम आता है, और वहां पे ऐसा फिगर, राइट, हायर एजुकेशन के लेवल पे, एजुकेशन सिस्टम पे ये मतलब एक उंगली उठा है। बट ये फैक्ट है, सी ग्राउंड रियलिटी तो यही है, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। देयर आर क्वाइट अ फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे सीट्स भी नहीं भरती, देयर आर क्वाइट अ फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे बिना किसी एंट्रेंस के आपको एडमिशन तो मिल जाते हैं, बट वो वैल्यू एडिशन एंड 2 years जो इंटेंजिबल वे में आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो दैट इज व्हाई पीपल चेज टॉप बी स्कूल्स, ओके। अब्रॉड अगर सोच रहे हो, ऑब्वियसली कोई कोई लोग माइंड में सिर्फ अब्रॉड जाके जॉब करने का सोचते हैं कि एक अर्निंग सेंस में ही उनका टारगेट होता है अब्रॉड का, राइट। बट राइट आफ्टर बीकॉम आपको उस तरीके की अपॉर्चुनिटी अब्रॉड मिले, उसके भी चांसेस कम होते हैं। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यू कैन गेट इनटू न्यूजीलैंड, कनाडा एंड सच अदर कंट्रीज, बट देन इफ यू वांट टू बी इन अ बेटर स्पेस, कि अब्रॉड जाके भी आप अगर जो आपका प्रोफाइल है, जो आपका डेजिग्नेशन से लेके अर्निंग कैपेसिटी सब कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो देन ऑब्वियसली you'll have to take up a proper master's program or an MBA or a diploma there। एंड पढ़ाई के साथ साथ वर्क कल्चर है, ये तो आप सभी को पता है कि इंडिया में ऐसा बहुत कम होता है कि भाई ग्रेजुएशन के साथ साथ लोग काम कर रहे हो। है 20-25% लोग ऐसे होते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली बैकग्राउंड एंड द फाइनेंशियल कंडीशन, जो काम करते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ, बट देन मेजरली ऐसा नहीं होता है। एंड वहां पे उल्टा है, सिर्फ 25% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम वर्क नहीं करते, बाकी के सारे करते हैं। एंड उसमें कंपल्जन है, मतलब वो पार्ट टाइम वर्क का वेटेज होता है आपके सब्जेक्ट में, आपके मार्क्स में, समझ रहे हो? So you need to keep all that in mind if you are considering abroad, and then of course you can choose your colleges, right from USA, UK, whatever suits you आपकी eligibility के हिसाब से। Campus recruitment, yes, even within MSU you have a centralized body, right? I am told CCC establish हुआ था कुछ साल पहले, career counseling cell if I'm not wrong। शायद वो टर्म में गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज एक्सक्यूज मी, बट आई एम अवेयर कि ऐसा एक सेल है जो डेडिकेटेडली काम कर रहा है कंपनीज को कैंपस पे लाने के लिए, राइट? Yes, sir. CCC. Right, correct. So I'm so sorry for that mistake. That was my lapse. And now, so that companies like TCS, you have Nielsen, जो लोग data analyst के profiles के लिए recruit करने आते हैं, you have private banks जो लोग field sales के लिए recruit करने आते हैं, then you have companies like Collabra and other locally built up recruitment firms, consultancy firms जो आपको टेक्निकल रिक्रूटर के तौर पे जॉब्स देने आते हैं।
एंड अगर आप कोर अकाउंटेंसी में ही रहना चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स अकाउंटेंट के भी जॉब्स काफी सारे अवेलेबल हैं। तो बीकॉम के लेवल पे आप सीधा एक एंट्री लेवल का जॉब लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली इन पे भी आप अपना माइंड शेयर दे सकते हैं। आपका थॉट प्रोसेस, एक लाइन ऑफ थिंकिंग जो आएगी वो ये एक्सटेंसिव चार्ट से अच्छे से आ पाएगी, ऐसा मेरा मानना है, राइट। एंड पब्लिक सेक्टर जॉब्स में आईएएस यूपीएससी तो सभी को पता है, राइट। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द ओल्डेस्ट एग्जाम, या ऐसा बोलूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन एशिया, नॉट ओनली इन इंडिया, राइट। एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं, राइट, कुछ शोज अगर आप देख रहे हैं तो एस्पिरेंट्स करके जो एक अभी रिसेंटली 5 एपिसोड का जो आया था, that was great, right? It opened up a whole lot of say school of thought for us, है ना कहीं हम उस साइड भी सोच पाते हैं, बिकॉज मूवीज का और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हम पे इतना इन्फ्लुएंस है जिसकी कोई हद ही नहीं है। फिर चाहे स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट वगैरह हो या मूवीज वगैरह हो, ठीक है, अगर वो अच्छे डायरेक्शन में है हम जैसे यंग गन्स के लिए तो ऑब्वियसली इट इज वेलकम, राइट। द अदर इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, बट दिस इज इक्वली बिग थिंग, राइट। मतलब ये CHSL होता है, कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल, जो 12th पास आउट दे सकते हैं। अभी के टाइम में आप खुद भी अगर सोच रहे हो तो दे सकते हो। एंड CGL होता है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल, जो ऑफ कोर्स बीकॉम के बाद जो बैचलर्स डिग्री खत्म कर चुके हैं वो दे सकते हैं। तो इसके अंदर देयर आर 21 पोजीशंस, जिसमें से कुछ फील्ड जॉब्स हैं, कुछ डेस्क वर्क जॉब्स हैं, ठीक है। डेस्क वर्क जॉब में अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, ये सारे पोजीशंस होते हैं। फील्ड जॉब्स में जो आपका एक स्टेटस क्वोशंट होता है ना, रेड मारने जाना है, टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज ड्यूटी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहाँ पे 3 साल अब्रॉड, 3 साल इंडिया, फिर 3 साल कोई दूसरा कंट्री, वापस 3 साल इंडिया, वैसा वर्क प्रोफाइल होता है। बट अनलेस यू गेट इनटू इट यू विल नॉट रियलाइज के यार ये एक 9 to 6 के जॉब से काफी अच्छा है, चैलेंजिंग भी है, एवर चेंजिंग है, ठीक है, चेंज मिलते रहेगा, आप कभी भी बोर्डम फील नहीं करोगे। इंडिया की एम्बेसी वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में है, तो जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ऑफिसर्स के तौर पे रिक्रूट होते हैं तो आपको उन कोई एक कंट्री में से इंडियन एम्बेसी ऑफिस में रखा जाता है, राइट। वो पीके मूवी देखी है ना, एंड में सरफराज का कॉल आता है, वो वहां पे Yes, पाकिस्तान एम्बेसी में से कॉल आता है, ठीक है। मैं ऐसे ही एग्जांपल्स लेता हूँ, सी ओवर द लास्ट 5 इयर्स जो मेरा प्रोफेशनल करियर रहा है, राइट, मैं ऐसे नॉर्मली क्लास में जाके सेल्स और मार्केटिंग का डिफरेंस जो है वो फिलिप कॉटलर की बुक से नहीं बताता, मैं बॉलीवुड मूवीज से बताता हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ फ्रीक, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्वियसली इज रेलवेज, ESIC या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे सेक्टर्स की भी अलग से एग्जाम होती है। देन यू हैव IBPS। बीकॉम के सेगमेंट को IBPS के बारे में नॉर्मली पता होता है, बिकॉज बैंकिंग एज अ सब्जेक्ट आप काफी डेप्थ में पढ़ते हैं, and at the same time you have exams conducted by LIC, SBI as well. I get some kind of disturbance right now. किसी को म्यूट करने की जरूरत है, हाँ, डन, ओके। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर्स, मतलब GPSC से लेके तलाटी और ये सारी एग्जाम्स भी होती हैं जो यहाँ पे फिर गुजरात लेवल पे, रीजनल लेवल पे कंसिडर की जाती हैं। बाकी की सारे आपकी नेशनल लेवल की एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में, ठीक है। ऑब्वियसली GPSC वगैरह में भी आपका गुजराती स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट अलग से होता है, एंड जो लोग इसमें इंटरेस्ट है ऑब्वियसली आई बिलीव इतने ट्रिगर पॉइंट्स के बाद आप आराम से रिसर्च कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू कनेक्ट। आप जिसमें जब ज्यादा ड्वेल करोगे ना, तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ वो आपको बहुत हेल्प करने चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है, अगेन ये मेरा अजम्पशन है, बट गिवन द काइंड ऑफ टाइम फ्रेम दैट वी हैव, एक लिमिट जो हमें दी गई है, तो उसकी वजह से मैं हर एक के रोड मैप में अभी नहीं घुसूंगा। गोल सेटिंग इज वन थिंग, वो गोल सेट करने के बाद रोड मैप डिस्कशन इज अदर थिंग, राइट। तो ये आपको विजुअली क्लियर होना चाहिए कि रोड मैप डिस्कशन में अभी करने जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, मतलब इट विल बी 28 में मॉर्निंग, वैसा हो जाएगा, ठीक है।
So right now we are focusing on goal setting, and then obviously अगर आप since childhood ऐसी कुछ चीजें देखते आए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि you can be a catalyst, right? कैटलिस्ट क्या होता है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट, एक केमिकल होता है जो उसमें डाल के, राइट, जो सोल्यूशन है, मतलब या तो भड़का होगा, राइट, या तो ऑल टुगेदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इफ यू हैव सम सोल्यूशन जो अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है, राइट, इफ यू थिंक यू हैव दैट चाबी ऑफ ताला, राइट, मेड इन चाइना मूवी देखी थी क्या, परेश रावल वाली, राजकुमार राव, ठीक है। सो इफ यू थिंक यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, देन व्हाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, मतलब उसमें तो शायद बीकॉम की भी जरूरत नहीं है इफ इट इज इनबिल्ट इन यू। आई एम नॉट डिमीनिंग द कोर्स दैट यू हैव टेकन अप, ऑनेस्टली आप जो ये थियरीज एंड प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो आगे जाके कहीं ना कहीं रिलेट भी करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट अगर आप टेक्निकली पढ़ते हो, जिसमें लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग वर्सेस राइट ब्रेन थिंकिंग होता है, इनोवेशन एंड डिस्कवरी में क्या फर्क है, ये सब जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको और अच्छे से चीजों को असेस करने में आसानी होती है, राइट। बट ये चीज तो अभी भी बता पाओगे, टेल मी, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड डिस्कवरी? एनीवन एल्स? स्टार्टिंग में जिन्होंने आंसर किया था उनके अलावा कोई है? सर इनोवेशन है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में न्यू क्रिएटिविटी लाना होता है, यानी न्यू अपडेट करना कोई भी वस्तु को। एंड डिस्कवरी? सर उसका इतना अच्छे से नहीं पता। तो यार डिफरेंस Sir, तो दोनों discovery बताओगे that is तभी। ये तो already वो आप ऐसा मत exist. करो कि मतलब एंडसेम में आप पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखने बैठे हो तो एक्टिव पैसिव वॉइस करके बढ़ा चढ़ा के डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इफ यू हैव जो आपने No, फर्स्ट पार्ट बताया वो सही था, इनोवेशन क्या होता है वो आपने सही बताया, राइट। अब सिर्फ डिस्कवरी क्या होता है वो बता दोगे तो क्लियर है, वैसा है। सम अदर वन वाज ट्राइंग, प्लीज टेल मी। सर Sir, डिस्कवरी discovery is that. उसमें कुछ नया Sir, discovery already. और इनोवेशन टोटल। ओके ओके, मुझे Sir, उसमें आना पड़ेगा। discovery already exists होता है और उसको कोई ढूंढ नहीं। एक मिनट, लेट द लेडी स्पीक, लेडीज फर्स्ट। या टेल मी, आप एक एक करके बोलिए। Sir, discovery is something that is already founded, that is already happened, but nobody has founded before that. Like Correct. अपना अर्थ, सॉरी इंडिया, क्रिस्टोफर जो थे उन्होंने ढूंढा था। गुड। क्या ढूंढा था उन्होंने? To invent something. चलो ठीक है, टू इन्वेंट समथिंग, उस पे आते हैं। Invention is the creation of new product, अमेरिका ढूंढा था। service or process. Innovation Okay. is the introduction of new product. ओके ओके, अच्छा, मतलब वो या तो गूगल हो गया और या तो एक डेफिनेशन आ गई रटी हुई, बट आई रियली अप्रिशिएट ये आंसर्स आपके सही लाइंस पे हैं। सी, इनोवेशन इज समथिंग के जहाँ पे हम लोग कुछ ऑल टुगेदर नया क्रिएट करते हैं, राइट। प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, समझ रहे हो? एक ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट ले आए हो तो वो इनोवेशन है। बट समथिंग दैट वाज ऑलरेडी देयर, राइट, सिर्फ अनकवर नहीं हुआ था वो, तो सिनोनिम बता दिया ना, डिस्कवर। अब मैंने अनकवर यूज किया तो थोड़ा और अच्छे से पता चला होगा, राइट। वो यूजेज ग्रामेटिकली गलत है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ही डिड नॉट इनोवेट अमेरिका, है ना। सो देयर इज अ रीजन हम लोग ये सारी चीजें बोलते हैं। ठीक है, सो देन ऑफ कोर्स इफ वी आर थ्रू दैट, ऑब्वियसली ये जो टिक मार्क्स आप देख पा रहे हैं, राइट, दीज आर द ऑप्शंस जहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। व्हेन आई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट इज ऑल अबाउट योर एप्टीट्यूड, राइट। यहाँ पे आपने जो बीकॉम में पढ़ा है वो सब नहीं आएगा। आई अंडरस्टैंड काफी लोगों को ये पता होगा, बट इफ देयर आर पीपल हु हैव जस्ट गॉटन स्टार्टेड,
तो देन ऑब्वियसली आपको बहुत ग्रासरूट लेवल से समझना है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। गोइंग अहेड, यहाँ से फिर मैं क्या करूंगा कि जब आपने रजिस्टर करते वक्त काफी क्वेरीज डाली थी, है ना, मुझे मतलब ये सर्वे इसलिए करना था ताकि मैं इस सेशन को आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल बना पाऊँ। सो काफी लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चंस डाले थे, हम लोग ने ओवरऑल समराइज करके कुछ क्वेश्चंस देखे जो सबसे ज्यादा पूछे हुए थे। कुछ क्वेश्चंस मिस आउट हो जाएंगे, if some or the other way we are able to address that individually, it will be great, but for now I will get into the questions that you guys have already asked, ठीक है। but at this point आपके कुछ queries हैं, कुछ concerns हैं जो आप पूछना चाहते हैं? Anyone has anything to ask? जितना हमने डिस्कशन किया, you know, whether it makes sense या फिर ये सब कुछ बाउंसर जा रहा है, आपके काम का नहीं Yes. है, कुछ फीडबैक है, बोलो। हाँ, एक एक करके। सर एमबीए में एचआर और एमएचआरएम में एचआर में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, सो ये क्वेश्चन अभी कवर हो ही रहा है नेक्स्ट स्लाइड में, ये काफी पूछा हुआ है, सो आई विल कम टू दैट। एनी अदर क्वेश्चन? सर Yes, please carry on. सर बीकॉम के बाद अगर हमें बीएड करना है, लेकिन वो बीकॉम के बाद बीएड अच्छा रहेगा कि एमकॉम के बाद अच्छा रहेगा? बीकॉम के बाद आप बीएड नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी यू हैव टू गो थ्रू मास्टर्स एंड देन यू टेक अप बीएड, ठीक है। तो वो एक मतलब लॉन्ग रन के सेंस में बोल रहा हूँ। बीएड जब आप बोल रहे हो तो आपको टीचिंग में जाना है, एंड बीएड नॉर्मली अगर आप स्कूलिंग सेंस में कंसीडर करते हैं तो इफ यू वांट टू टेक में करना है, लेकिन हायर लेवल के जो होते हैं ना 11th 12th कॉमर्स का, जी बिल्कुल उनका करवाना है। करेक्ट, तो उसमें ऑब्वियसली आप बीएड तो करो ही, एंड जो एलिजिबिलिटी व्यू पॉइंट है वो इस तरीके से है कि आप डायरेक्टली बीकॉम के बाद तो, एंड प्रीवियसली बीएड 1 साल का हुआ करता था, 2016 से लेके ये 2 इयर्स का प्रोग्राम हो गया। पिछले 5 साल में काफी चेंजेस आए हैं इस स्पेस के अंदर, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू टेक अप टीचिंग एज अ प्रोफेशन इन कॉलेजेस, राइट, तो वहां पे फिर या तो पीएचडी का मैंडेट है, या तो फिर आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के बाद you can get into assistant professors kind of roles or temporary teachers kind of roles. वो नेशनल एलिजिबिलिटी लेवल के जो टेस्ट होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकते हैं? I'll brief you. See, गूगल बाबा तो है ही है, राइट, बट अगेन क्या होता है कि एक ऑथेंटिक सेंस में आप डायरेक्टली उनका वेबसाइट देखें तो और बेटर है। सो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये यूजीसी कंडक्ट करती है, मतलब क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेके रूल्स एंड पॉलिसीज सब कुछ वो डिसाइड करती है, बट कंडक्टिंग एजेंसी एक अलग है। मतलब जो लॉजिस्टिक का काम है, पूरा सॉफ्टवेयर इंटरफेस बनाना और ऑनलाइन ये जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करना, वो पूरा काम एनटीए को दिया गया है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो मास्टर्स के दौरान नीट के लिए एमकॉम करना कंपलसरी है? जी बिल्कुल कंपलसरी है, मास्टर्स के बिना एनईटी नहीं दे सकते, राइट। सो जैसे आपने एमकॉम फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में किया, अकाउंटिंग में किया, तो एनईटी जो है वो टोटल 85 सब्जेक्ट्स में होता है। कॉमर्स अलग से अवेलेबल है, एचआर अलग से है, मैनेजमेंट, वैसे ही फिर लैंग्वेजेस संस्कृत, जर्मन, ये वो, राइट। प्योर साइंस के अंदर भी केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी एनईटी के अंदर। तो कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम करने के बाद ही वो दे सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। सर इसके बारे में थोड़ा आप सर्च करके लिंक शेयर कर सकते हैं? हाँ, मतलब टुवर्ड्स द एंड विल कम टू दैट कि आपको जो भी, सॉरी सर केवी में अगर हमें टीचर की मतलब उसके लिए करना है तो बीकॉम के साथ बीएड इनफ है या और कुछ करना होगा? नहीं, बीकॉम भी एक बार को नहीं होगा तो चलेगा, बीएड कंपलसरी है, राइट। तो ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर में जब आप जा रहे हैं
तो उसका एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, राइट। एमएसयू में भी आप अगर ये जो साइंस फैकल्टी है वहाँ से लेफ्ट साइड में एजुकेशन बिल्डिंग है, अगर आपको पता हो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ पे एक बार आप जाके भी चेक कर सकते हैं आगे जाके जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी। एंड एट द सेम टाइम यू हैव अदर गुड यूनिवर्सिटीज जहाँ पे बीएड प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। सो वो ऑब्वियसली 1 ईयर स्टडीज है, दूसरा साल आपको इंटर्नशिप या जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलो वही चीजें करनी होती है। वो लोग आपको स्कूल्स में भेजेंगे पढ़ाने के लिए, जहाँ पे आप 3 to 6 months ट्रेन हो जाएंगे एंड देन ऑब्वियसली यू कैन गेट देयर। बट एक चीज समझो, ये इसमें 2-3 स्टेप्स हैं, मतलब बीएड करने के बाद आप केवी में टीचर बन जाओगे वैसा नहीं होता है। इसमें करना क्या है पता है, बीएड के बाद आपको सीटेट करके एक एग्जाम देना है, CTET, कॉमन टेस्ट फॉर टीचर्स, मतलब एंट्रेंस टेस्ट फॉर टीचर्स, ऐसे करके वो एग्जाम है। तो सीटेट क्लियर करेंगे तब जाके, पहले बीएड खत्म करना है फिर सीटेट एग्जाम देना है, वो क्लियर होगा तो आप केवी में इंटरव्यू देने जाओगे, वो इंटरव्यू क्लियर करोगे तो आप केवी में टीचर बनोगे। तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने का ये रास्ता है। तो एज आई सेड, रोड मैप इंडिविजुअली सभी चीजों का मैं डिस्कस करूंगा तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। चाहे वो एमबीए का रोड मैप हो, एमएचआरएम का हो, गवर्नमेंट जॉब्स का हो, आपके इंडिविजुअल रोड मैप वाले क्वेरीज आप बाद में डालिएगा। फिलहाल ऑप्शंस के सेंस में या और कोई टेक्निकल क्वेरी है तो बताओ। सर हमें एमबीए करना है तो हमें एमकॉम करना कंपलसरी है? नहीं, आप बीकॉम के बाद सीधा एमबीए कर सकते हैं। एक तरीके से मास्टर्स डिग्री व्यू पॉइंट से देखा जाए तो एमकॉम एमबीए ये सब एट पार है, कोई बड़ा या कोई खराब नहीं है या कोई कम नहीं है, राइट। इतना है कि एमकॉम में मोस्टली थियरी बेस्ड चीजें रहेंगी कि जैसे आप अभी एग्जाम्स देके क्लियर कर रहे हैं, डिग्री आपको मिल रही है, उसी तरीके से एमकॉम में भी रहेगा। बट एमबीए में थोड़ा फर्क ये पड़ जाएगा कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, मतलब कैंपस प्लेसमेंट्स का सीन जो है वो वहाँ पे बेटर है। तो लॉन्ग रन में अगर आपको लगता है कि मुझे अपना करियर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना है, राइट, अच्छे लेवल पे ले जाना है जहाँ पे मुझे टीम लीड रोल्स थोड़े जल्दी मिले, तो देन ऑब्वियसली एमबीए विल मेक सेंस। फिर आप कौन से स्पेशलाइजेशन में करते हैं ऑब्वियसली वो आपका इंटरेस्ट एरिया पे है और आपकी प्रायोरिटी पे है, वैसा होता है। एनी अदर क्वेरीज?